پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے چین کی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کی ترقی قابل ستائش ہے۔ چین پاکستان کا اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ چین کے ساتھ قریبی تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہیں۔ ترقی کے سفر میں پاکستان اور چین اہم شراکت دار ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا چین کے نئے سال کے آغاز پر پیغام۔ صدر آصف علی زرداری کی صدر شی جن پنگ کو چین کے سال نو اور موسم بہار کے تہوار پر مبارکباد۔ صدر شی جن پنگ کی صحت، چینی عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ صدر مملکت کی جانب سے بھیجے گئے خط میں پاکستان اور چین کے مابین آہنی دوستی کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک کے درمیان سدا بہار تصویراتی شراکت داری ہے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت جاری رکھے گا۔ دو طرفہ تعلقات اور سی پیک کو آگے بڑھانے میں صدر شی جن پنگ کی بصیرت انگیز قیادت کے شکر گزار ہیں۔ صدر آصف علی زرداری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی قائم کرنے کا اصولی فیصلہ۔ اضلاع میں ڈسٹرکٹ اسپیشل پلاننگ کمیٹی کے قیام پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ کا ہاؤسنگ سیکٹر کی زیر التوا درخواستیں فوری طور پر نمٹانے کا حکم۔ ناقص حکمت عملی کے باعث بے ہنگم غیر قانونی سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ ٹاؤن پلاننگ مستحکم مستقبل کی ضمانت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب۔ کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس سمٹ دوسرے روز بھی جاری۔ 12 سے زائد ممالک کے یوتھ وزراء اور مندوبین اجلاس میں موجود۔ نیشنل یوتھ کونسل کے اراکین بھی اجلاس میں موجود۔ سیشنز میں علاقائی ممالک کے نوجوانوں کے درمیان روابط کے فروغ اور تعاون پر غور، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع اور انٹرپرینیور کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ قلعہ عبداللہ میں دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی۔ 2 خودکش بمباروں سمیت 5 خارجی جہنم واصل۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان شہید۔ سیکیورٹی فورسز کا بنو کے علاقے جانی خیل میں بھی خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ 3 خارجی مارے گئے، 9 زخمی۔ دشمنوں کے مذموم عزائم ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا شہداء کو خراج عقیدت۔ پاک فضائیہ دنیا کی طاقتور ترین ہوائی افواج میں 7ویں نمبر پر۔ 1434 طیاروں کے ساتھ پاک فضائیہ علاقائی سلامتی کو یقینی بنانے اور جنوبی ایشیا میں تصویراتی غلبہ برقرار رکھنے میں اہم کردار کی حامل۔ امریکہ سب سے بڑی اور جدید ترین فضائیہ کے ساتھ سر فہرست۔ روس اور چین بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر۔ مصر، ترکیے اور فرانس بھی ٹاپ 10 میں شامل۔ globalfirepower.com کی رپورٹ۔ اڈیالہ جیل کے قیدی کو ڈیل کی امید نظر نہیں آ رہی۔ بانی پی ٹی آئی نے خود ہی مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا اور پھر مذاکرات سے بھاگ گئے۔ جگہ جیل میں ہوتی ہے تو شقانہ چور این آر او مانگ رہا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کا ذکر کیے بغیر آپ لوگوں کی سیاست نامکمل ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل۔ موسمیاتی تبدیلی اس وقت کا سب سے اہم چیلنج ہے۔ سندھ کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی زراعت کو شدید نقصان پہنچا۔ ہم نوجوانوں کو بااختیار بنا رہے ہیں تاکہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان پائیدار مستقبل کے لیے تبدیلی کے ایجنٹ کے طور پر کام کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا پاکستان کلائمیٹ کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان کے لائف سٹاک سیکٹر میں انقلاب، برازیلین ماہرین کے زیر نگرانی جدید تربیتی پروگرام شروع۔ اوم پک اپ، آئی وی ایف اور ایمبر یو ٹرانسفر ٹیکنالوجی پر 3 ہفتے کے لیے خصوصی ورکشاپ۔ جدید تکنیک کے ذریعے زیادہ بچڑوں کی افزائش۔ فون گرو فارمز کا ملک بھر میں دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کا عزم۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل جاری۔ بھارت میں کمبھ میلے کے دوران بھگدڑ سے 15 افراد ہلاک، 30 سے زیادہ زخمی۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔
दरियाए गंगा में स्नान के दौरान भगदड़ का वाकया पेश आया। वाकये के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। मेले में शिरकत के लिए दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन शिरकत करते हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस न लेने वाले ममालिक को भारी मुआशी कीमत चुकाना होगी। गैर कानूनी अफराद को रोकना पहले तीसरी तरजीह थी, लेकिन अब ये पहली तरजीह है। सदर ट्रंप ने इनकम टैक्स के मुकम्मल खात्मे का इनकलाबी मंसूबा पेश कर दिया। दूसरी कौमों पर टैक्स लगाकर अपने शहरियों की माली हालत बेहतर बनाने का ऐलान। इसराइली जारियत से बेघर फलस्तीनियों की शुमाली गजा में वापसी का अमल जारी। 3,76,000 से जायद लोगों की अपने तबाहशुदा इलाकों में आमद। 1,45,000 खैमों की अशद जरूरत। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा पर गजा में इमदादी सरगर्मियों पर इसराइली पाबंदी पर गौर के लिए सलामती काउंसिल का इजलास। गजा में उनरवा पर पाबंदी से इंसानी खदमात शदीद मुतासिर होंगी। उनरवा सरबराह। चीन में साले नौ के मौके पर मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियां उरूज पर। रवां साल रंगारंग फेस्टिवल में म्यूजिक, रक्स, कॉमेडी, एक्ट और ड्रामे शामिल। मुख्तलिफ शहरों में देवहैकल लालटेनों की जगमगाती रोशनियों ने शहरों की रौनकें मजीद बढ़ा दी। चाइना मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम स्प्रिंग फेस्टिवल गाला पेश किया गया। दुनिया भर के 200 से जायद ममालिक और खित्तों के तकरीबन 3,000 ज़राए अबलाग ने इस तकरीब को बराह रास्त दिखाया। पहली बार बसारत और समाज से महरूम अफराद के लिए स्पेशल वर्जन लॉन्च किया गया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद। बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला अबर आलूद रहने के अलावा बारिश और बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेविलियन और मीडिया बॉक्सेस की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल। इनक्लोजर्स में कुर्सियों की तनसीब आखिरी मरहले में दाखिल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। पेविलियन, मीडिया बॉक्स, वीआईपी बॉक्सेस समेत अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तवील अरसे बाद पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है। मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाएंगे मोहसिन नकवी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त जारी। ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकट दस्तयाब। जनरल स्टैंड्स के टिकट की कीमत 1,000 रुपए, फर्स्ट क्लास की कीमत 1,500 और वीआईपी टिकट की कीमत 5,000 रुपए है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान की मेजबानी में मुनक्किद होगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर।
शहबाज शरीफ से बैन अल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। अमरीकी सरमायाकार जेनेटरी बीच की क़यादत में वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बैन अल-अक़वामी सरमायाकारों की वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। अमरीकी सरमायाकार जेनेटरी बीच की क़यादत में वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सारगार कारोबारी माहौल और मजबूत इदारा जाती ताउन के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारों की सहूलतें फराहम करने के अज़्म का इजहार। वफ्द की हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों की तारीफ। मुस्तक़बिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। अमरीकी सरमायाकार जेनेटरी बीच की क़यादत में वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का साजगार कारोबारी माहौल और मजबूत इदारा जाती ताउन के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतें फराहम करने के अज़्म का इजहार। वफ्द की हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों की तारीफ और मुस्तक़बिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बैन अल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। अमरीकी सरमायाकार जेनेटरी बीच की क़यादत में वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का साजगार कारोबारी माहौल और मजबूत इदारा जाती ताउन के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के अज़्म का इजहार। वफ्द की हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ की तारीफ और मुस्तक़बिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार। नाज़रीन, अब खबरनामे में आपको बताएंगे चीन के नए साल के आगाज़ पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि चीन पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार हैं। On behalf of the government and the people of Pakistan, I extend my warmest greetings to President Xi Jinping, the brotherly people of China, and our Chinese friends in Pakistan on the auspicious occasion of the New Year. Over the last many decades, China's remarkable journey of progress and development is a testament to the wisdom and foresight of its visionary leader, President Xi Jinping. For us in Pakistan, China's success story serves as a beacon of inspiration and confidence. Our close friendly ties, rooted in mutual trust and shared aspirations, have now transformed into a comprehensive strategic partnership. Thanks to our deep and abiding friendship, Pakistan and China stand united in their unwavering commitment to a better world. Together, we shall continue to make meaningful contribution to global peace, prosperity, and harmony. May this year bring good fortune and continued success to our two great nations and further strengthen the unbreakable bonds between our two peoples. सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की सदाबहार तज़वीराती शराकतदारी है। दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग में सदर शी जिनपिंग से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। चीन के सदर के नाम मुरासले में सदर ममलकत ने नए साल के आगाज और मौसम बहार के त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए कहा कि चीनी अवाम की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वन चाइना पॉलिसी हमारी खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के माबैन आहनी दोस्ती को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार और मुसलसल ताउन को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक की क़यादत की अनथक कोशिशों ने बैनुल रियासती ताल्लुकात के इस मुनफरिद और मिसाली बंधन को परवान चढ़ाया और मजबूत किया। सदर ममलकत ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को आगे बढ़ाने में चीनी सदर की बसीरत अंगेज क़यादत का शुक्रिया अदा किया।
नाज़रीन, चीन में साल नौ के मौके पर मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियां उरूज पर। रवां साल रंगारंग फेस्टिवल में म्यूजिक, रक्स, कॉमेडी, एक्ट और ड्रामे शामिल हैं, जबकि सालाना शो में चीनी आर्टिस्टों की महारत से तैयार अशिया ने धूम मचा रखी है। मुख्तलिफ शहरों में देव हैकल लालटेनों की जगमगाती रोशनियों ने शहरों की रौनकें बढ़ा दी हैं। चीनी नए साल के मौके पर चाइना मीडिया ग्रुप के ज़ेर तमाम आलमी नाजरीन के लिए स्प्रिंग फेस्टिवल गाला पेश किया गया। दुनिया भर के 200 से ज़ायद ममालिक और खित्तों के तकरीबन 3000 ज़राए अबलाग ने इस तकरीब को दिखाया। फेस्टिवल में मूसीकी, रक्स, ओपरा और मार्शल आर्ट के शानदार मुजाहरे पेश किए गए। रवां साल के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की नशरियात के लिए पहली बार बसारत और समाज से महरूम अफराद के लिए स्पेशल वर्जन लॉन्च किया गया, जिसमें चाइना मीडिया ग्रुप की साइंसी और तकनीकी इख्तरात की इत्तलात से 82 जुबानों में आलमी सतह पर नाजरीन के लिए ये सकाफती तकरीब पेश की गई। नाज़रीन, चीनियों के लिए नए साल का त्यौहार बहुत अहमियत रखता है। चीनी इसे जश्न बहार का नाम देते हैं और नए साल का आगाज इंतहाई जोशो खरोश से करते हैं। तफसील वक़ार हैदर की रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में चीनी आज यानी 29 जनवरी को अपना नया साल मना रहे हैं। चीनी अफराद के लिए नए साल की शुरुआत सबसे अहम होती है और इसकी तैयारी इस दिन से हफ्तों पहले शुरू हो जाती है। चीनियों के लिए गुज़श्ता साल की आखिरी रात बहुत अहम है। शाम ढलते ही चीनी अपने खानदान के साथ मिल बैठकर रात का खाना तनावुल करते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। टेलीविजन पर चाइना मीडिया ग्रुप की जानिब से इस रात खसूसी प्रोग्राम नशर किया जाता है, जिसको स्प्रिंग फेस्टिवल गाला कहा जाता है, जहां मुनफरिद और अवामी दिलचस्पी के खसूसी प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं। कमरी साल के पहले दिन चीनी अफराद अपने अजीजो अकारब और दोस्त अहबाब के घरों में जाकर उनको नए साल की मुबारकबाद देते हैं और नए ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, जबकि खानदान के बड़े अफराद सुर्ख रंग के लिफाफों में बच्चों को ईदी भी देते हैं। साल 2025 का नया चीनी कमरी साल सांप से मंसूब है। चीनी तहजीब और सकाफत में इससे मुराद नई जिंदगी और साबित कदमी दिया जाता है। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बीजिंग, चाइना। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में कमर्शियल और रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्देबाब के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तवा दरखास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म दिया और कमर्शियल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग यकसा कलर और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। उन्होंने कहा कि नाक़िस हिकमत अमली की वजह से अर्बन एरियाज़ में बेहंगम और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। उन्होंने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया। नाज़रीन, कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समिट दूसरे रोज भी जारी है। समिट में आज भी कई सेशंस मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनमें नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए रवाबित के फरोग और ताउन पर गौर किया जा रहा है। मज़ीद तफसील जानते हैं यूथ अलायंस समिट में मौजूद हमारे नुमाइंदे फ़ाहद जावेद हमारे साथ होंगे, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समिट दूसरे रोज भी जारी है, आज इसका दूसरा रोज है और आज भी कई सेशंस मुनक्किद किए जा रहे हैं और इन सेशंस में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए रवाबित के फरोग और ताउन पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समिट का आज दूसरा रोज है और गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इस समिट से खिताब किया था और समिट में आज भी कई सेशंस मुनक्किद किए जा रहे हैं और आज के सेशंस में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए रवाबित के फरोग और ताउन पर गौर किया जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के जो वज़रा हैं वो भी नौजवान वज़रा भी मौजूद हैं। नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इसमें मौजूद है। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समिट का आज दूसरा रोज है। इस समिट में आज भी कई सेशंस जो है वो मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जो रवाबित हैं उसके फरोग और ताउन पर गौर किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला में खवारिज का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक खवारिज दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश के दौरान बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 2 खुदकुश बमबारों समेत 5 खवारिज जहन्नम वासिल हुए। फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान नाइक ताहिर खान और लांस नाइक ताहिर इकबाल ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस के बन्नू के इलाके जानी खेल में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू के इलाके जानी खेल में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए जबकि 9 जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के ज़िला कला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में 5 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने और दहशतगर्दों का सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। नाज़रीन, शुजाअत और सरफरोशी की काबिले रश्क दास्तान लिए पाकिस्तान एयरफोर्स कदम ब कदम मंजिल की तरफ महवे परवास है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 13 अप्रैल 1948 को फरमाया कि एक ताकतवर हवाई फौज के बगैर मुल्क किसी भी जारे के रहमो करम पर होता है। जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान को अपनी फजाइया बना लेनी चाहिए। ये लाजमन एक बेहतरीन हवाई फौज हो जो किसी दूसरे से पीछे ना हो। globalfirepower.com की हालिया दर्जाबंदी के मुताबिक पाक फजाइया ने दुनिया की ताकतवर तरीन फजाई अफवाज में 7वीं पोजीशन हासिल की है। इस रैंकिंग का तयन लड़ाका तैयारे, हेलीकॉप्टर और दीगर तैयारों की तादाद और इक़साम का जायजा लेकर किया जाता है। 1434 तैयारों के बेड़े के साथ पाक फजाइया इलाकाई सलामती को यकीनी बनाने और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक गलबा बरकरार रखने में अहम किरदार की हामिल है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सबसे बड़ी और जदीद तरीन फजाइया के साथ पहले, जबकि रूस और चीन बिल तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद अपने बहरी बेड़े को जदीद बनाने और फजाई ताकत को बढ़ाने में पेश है। नाज़रीन, पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी लोगों की सियासत नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि एनआरओ की ज़रूरत बैरिस्टर सैफ के लीडर और उसके करप्ट खानदान को है। अस्मा बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज पंजाब के लोगों की खिदमत में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि अडियाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। अब उन्हें डील की उम्मीद नजर नहीं आई तो मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। अस्मा बुखारी ने कहा कि जिस शख्स की पूरी जिंदगी बैसाखियों के सहारे गुजरी हो वो कभी लीडर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपने अलावा किसी को अहमियत नहीं देता, ऐसे शख्स से बातचीत करना भी वक्त का ज़िया है। पाक फौज के ज़ेरे तमाम आज़ाद कश्मीर के जिला रावलाकोट में रिटायर्ड फौजियों की फलाह बहबूद के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में कोर कमांडर रावलपिंडी, GOC मरी और तकरीब में सैकड़ों की तादाद में रिटायर्ड फौजियों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कोर कमांडर रावलपिंडी ने कहा कि वतन अजीज पाकिस्तान उम्मत मुसलमा की उम्मीदों का मरकज़ है। दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों में मसरूफ़ हैं। हम सबको मिलकर इस मुल्क की मजबूती के लिए किरदार अदा करना होगा। आज़ादी की कदर गज़ा की पट्टी में बसने वाले शीरखार बच्चों, ख़वातीन और मुसलमानों से पूछें या मकबूजा कश्मीर में जाएं तो पता चलता है। इस मौके पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने साबका फौजियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। साबका फौजियों ने इस बेहतरीन प्रोग्राम को वेटरन कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने और उनकी फलाह बहबूद के लिए संग मील करार दिया। आज हम अपनी कौम को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम हर मुश्किल वक्त में अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े होंगे। हम पाकिस्तान आर्मी के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है बात करने का और अपनी आर्मी के साथ यकजहती करने का। हम इंशाल्लाह जब भी हमारी आर्मी को, हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ी, हम इंशाल्लाह सबसे आगे और पेश रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि हम तजर्बाकार लोग भी हैं, हम सबसे आगे होकर अपनी आर्मी का साथ देंगे। फौजी पाकिस्तान की हमदर्दी है, अगर फौज नहीं है तो पाकिस्तान है, फौज है तो पाकिस्तान है। मैं ये खुले दिल से कह रहा हूँ। हमने खुद भी और छोटा बच्चा था मैं, तो हमने अपने मादे वतन की दिफा के लिए, और ये पाकिस्तान है तो हम सिविलियन भी हैं, सब हैं। हम इस मुल्क की खातिर आखिर दम तक, पानी में, आग में, हवा में, जहाँ कहीं भी मरते दम तक हमारी जरूरत पड़े हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमारे पास पाकिस्तान का झंडा है, इसकी बेरुमती करने वाले को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। हम पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत करना हम जानते हैं। जो हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा उसकी आंख निकालेंगे। उसके बाद मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ हम
दिन रात खड़े हैं, उनको जब भी जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम उनके साथ शाना बशाना चलेंगे। मैं अपने उन कश्मीरी भाइयों को भी पैगाम देना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान आर्मी पे इन्हिसार रखें। इंशाअल्लाह उल अज़ीम एक ना एक दिन आपकी आज़ादी का सूरज तुलू जरूर होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अमराज क़ल्ब से मुताल्लिक़ अवाम में आगाही फैलाना ज़रूरी है। सेहतमंद शहरी ही सेहतमंद माशरा तश्कील देते हैं। दिल के अमराज से मुताल्लिक़ सिम्पोजियम से खिताब करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि सेमिनार्स और सिम्पोजियम का इनेकाद अमराज क़ल्ब से मुताल्लिक़ आगाही के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि सीनियर मौलिजीन की रहनुमाई से दिल के अमराज का इलाज मज़ीद बेहतर हो सकेगा। जदीद तरीका इलाज के लिए हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, तो बाकी सूबों को चाहिए कि उसको फॉलो करें। और अगर किसी और सूबे की अच्छी है, चाहे वो पंजाब की हो, सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, तो हमें भी चाहिए कि हम उस चीज़ को फॉलो करें। हमें एक हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए कि अगर किसी सूबे की एक अच्छी चीज़ है उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी अपने लोगों को देनी है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। कराची में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में होता है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस साल हमने 10 अरब रुपए रखे हैं। हम सोलर रूफटॉप्स दे रहे हैं। एक हमारा पुराना प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की एक लोन के साथ चल रहा है, जो कि ऑलरेडी रोल्ड आउट है। ये दूसरा प्रोग्राम जो सिंध गवर्नमेंट का है वो भी इन प्रोसेस है। थरपारकर में कोल से एनर्जी पैदा करें तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम इस वक्त तक तकरीबन 2000 मेगावाट विंड एनर्जी के जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम जम्पीर कॉरिडोर। पाकिस्तान के लाइव स्टॉक सेक्टर में इनकलाब ब्राजीलियन माहिरीन के ज़ेरे निगरानी जदीद तरबियती प्रोग्राम का आगाज हुआ। SIFC के ताउन से फोन ग्रो ने पाकिस्तान की मईशत और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा किया है। फोन ग्रो लाइव स्टॉक फार्म्स खानीवाल में जदीद IVF ट्रेनिंग, ब्राज़ीलियन माहिरीन ने शिरकत की। ओम पिकअप, IVF और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजीज़ पर आलमी माहिरीन की 3 हफ्ते तक खुसूसी तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद हुई। फोन ग्रो फार्म्स ने दुनिया भर में दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने का अज़्म किया है। SIFC की मुआवनत से फोन ग्रो ज़रई जिद्दत में पेश ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पायदार ज़रई हल की जानिब एक मुस्बत कदम है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सूबे से पोलियो वायरस का खात्मा मौजूदा सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से है। सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में एक नए अज़्म के साथ संजीदा इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत निचली सतह पर ज़च्चा बच्चा की सेहत की सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए बुनियादी मराकज़ सेहत पर खातिर ख़ास सरमायाकारी कर रही है। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत को सेहत के शोबे में काम करने वाले बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तालीम, ख़ुसूसन बच्चियों की तालीम, मौजूदा सूबाई हुकूमत की तरजीहाती शोबों में से एक है। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों की सूबे में मुख्तलिफ शोबों में अवामी फलाह बहबूद की सरगर्मियों पर तबादले ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से सल्तनत ओमान के कौंसल जनरल समी अब्दुल्ला सलीम की सरबराही में कोमैक्स के वफ़द ने कराची में मुलाकात की। वफ़द में CEO को मैक्स उमरो अब्दुल्ला बिन साले बाबूद की शरीक थे। मुलाकात में पाकिस्तान और ओमान के दरमियान IT सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि गवर्नर हाउस में IT के कोर्सेज कराने का मकसद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना है। पाकिस्तान ओमान के साथ IT सेक्टर में ताउन को मजीद फ़रोग़ देना चाहता है। वफ़द ने आई-मार्की का दौरा भी किया। इस मौके पर तलबा से खिताब करते हुए काउंसिल जनरल ने कहा कि गवर्नर हाउस में हजारों नौजवानों को IT स्किल से रूशनास कराना काबिल तारीफ है। CEO कोमैक्स उमर अब्दुल्ला बिन साले बाबू ने कहा कि ओमान पाकिस्तान IT एक्सपोर्टर्स की बड़ी मार्केट है। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों से मुलाकात की। कारकुनों से खिताब करते हुए सरदार सलीम हैदर ने कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को इस वक्त नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए आवाज़ उठाई है। पार्टी वर्कर्स हमारा सरमाया हैं। सिंध के वज़ीर आला ने सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जामशोरो में क्रिटिकल केयर यूनिट कायम करने का ऐलान किया है।
कराची में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के 58वें कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने सिंध के शोबे में बहुत काम किया है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सिंध हुकूमत का बेहतरीन हस्पताल है। उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि उम्मीद करता हूँ कि अपनी तवानाइयों और महारत आवाम की भलाई के लिए सर्व करेंगे। आपके वालिदैन ने अपनी कुर्बानियों के जरिए आपको इस बावकार मुकाम तक पहुँचाया है। अपनी बेहतरीन सलाहियतों और लगन के साथ खुद को मुल्क की खिदमत के काबिल बनाएं। उन्होंने कहा कि कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी काबिल सताइश है। तालीमी इदारों की तरक्की इंतजामी खुद मुख्तारी से जुड़ी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तिब्बी इदारों में तैयार मसनूआत पर आवाम को यकीन होना चाहिए कि वो महफूज और फ़ायदेमंद हैं। चाहते हैं कि ये अजीम इदारा तरक्की का सफ़र जारी रखे और मुल्क के लिए मज़ीद एजाज़ हासिल करे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रखिएगा। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। हम जुस्तजू, हम वलवला, हम हिम्मत ताकत हौसला। हम जुस्तजू, हम वलवला, हम हिम्मत ताकत हौसला। हम जिद्दतों के पासबान, हम मुस्तकबिल के रहनुमा। हम जिद्दतों के पासबान, हम मुस्तकबिल के रहनुमा। आओ रोशन कल का वादा करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। SCO सरबराह इजलास 2024 और मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के बाद कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस, काया और एशिया रीजनल यूथ मिनिस्टर्स 2025 इजलास में आने वाले तमाम शुरका को पाकिस्तान खुशामदीद। M-टैग के बगैर गाड़ी अब पड़ेगी जेब पर भारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कामयाब अमल दरामद के बाद M-टैग का इतलाक मुल्क की तमाम मोटरवेज पर कर दिया गया है। M-टैग के बगैर मोटरवेज पर दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियां इजाफी टोल टैक्स अदा करेंगी। 31 जनवरी 2025 तक M-टैग मुफ्त लगवाए जा सकते हैं। M-टैग लगवाने के लिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक और शनाख्ती कार्ड के हमरा तशरीफ लाएं। मजीद मालूमात के लिए 1313 पर कॉल करें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी। वेलकम बैक। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपील पर समाअत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस आज भी दलाइल जारी रखे हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट के 12 नए एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने जजेस से हलफ लिया। नए जजेस में जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्नीम सुल्ताना, जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर, जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी, जस्टिस अब्दुल हामिद भरगड़ी, सैयद फयाजुल हसन शाह, जस्टिस जान अली जुनेजो, जस्टिस निसार अहमद भुमरो, जस्टिस अली हैदर, मोहम्मद उस्मान अली हादी और मोहम्मद जाफर रजा शामिल हैं। एडिशनल जजेस की तकर्री 1 साल के लिए की गई है। नए जजेस की हलफ बर्दारी के बाद सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद यानी 40 मुकम्मल हो गई है। सऊदी अरब के मशरक़ी सूबे के साबिक गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहजादा मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के इंतकाल पर गहरे रंज और दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि शहजादा मोहम्मद बिन फहद की मुमलिकत सऊदी अरब के लिए नुमाया खिदमात और उनकी आवाम के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अजीज सऊद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि अल्लाह मरहूम को अपने जवारे रहमत में जगह दे और लवाहिकीन को सब्र और बर्दाश्त करने का हौसला दे।
नाज़रीन, भारत में कुंभ के मेले में भगदड़ से 15 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में जारी कुंभ मेले में रात हादसा पेश आया, जहां समंदर किनारे मौजूद हजारों लोग बैरियर्स टूटने की वजह से खौफ व हिरास का शिकार हुए और उससे भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन का बताना है कि कुंभ के मेले में पेश आने वाले हादसे में हलाकतों में इजाफे का खदशा है। ताहम अब तक हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर हलाकतों की तादाद नहीं बताई गई है। भारतीय हुक्काम मेले में तकरीबन 28 मिलियन अफराद शरीक हैं, जहां वो हिंदू मजहब के मुताबिक डुबकी लगाते और मजहबी रसूमात अदा करते हैं। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा पर गजा में पाबंदी पर गौर के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। उनरवा के सरबराह फिलिप लेजुरानी ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से उनरवा पर पाबंदी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि इमदादी सरगर्मियों पर पाबंदी से गजा में इंसानी इमदाद का बहरान पैदा हो जाएगा। उनरवा के मुताबिक इजलास में सलामती काउंसिल के अक्सर अरकान ने पाबंदी को अफसोसनाक करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तकिल नुमाइंदे रियाज मंसूर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उनरवा का कोई मुतबादिल नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल ने गजा को तबाह कर दिया है और आलमी बिरादरी गजा की बहाली में हाथ बटाए। उन्होंने कहा कि हम सबको उनरवा के दिफा के लिए मिलना पड़ेगा। शुमाली गजा में अब तक 3,76,000 बेघर फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस आ गए हैं। इंसानी उमूर से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक इन बेघर अफराद में 50% मर्द हैं, जबकि 25% ख़वातीन और 25% बच्चे हैं। इदारे के मुताबिक बेघर फ़लस्तीनी मुश्किल रास्ता तय करके मरहलावार गजा पहुंचे। पैदल वापसी के जरिए इस मुश्किल मरहले को तय करने वालों में हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन, उम्र रसीदा, माजूर और दरीना अमराज में मुब्तला अफराद शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक इसराइली बमबारी के बाद शुमाली गजा की हालत शनाख्त के काबिल नहीं। वापस आने वालों को अपने घर शनाख्त करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमास और इसराइल के दरमियान गजा जंगबंदी और कैदियों के तबादले का मुआहिदा मिस्र, कतर और अमरीका की वसातत से रवा माह 19 जनवरी को नाफिजुल अमल हुआ था। मुआहिदे के तहत अब तक 7 इसराइली ख़वातीन कैदियों और उनके मुकाबिल 290 फ़लस्तीनी असीरों को आज़ाद किया जा चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस ना लेने वाले ममालिक को भारी माशी कीमत चुकाना होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप का कहना है कि पहले गैर कानूनी अफराद को रोकना तीसरी तरजीह थी, ताहम अब ये उनका पहला एजेंडा है। सदर ट्रंप ने इनकम टैक्स के मुकम्मल खात्मे का इनकलाबी मंसूबा पेश करते हुए कहा कि इनकम टैक्स खत्म करेंगे, दूसरी कौमों पर टैक्स लगाकर अपने शहरियों की माली हालत बेहतर बनाएंगे। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दमिश्क में शाम की नई इंतज़ामिया के सरबराह अहमद अशरह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुस्तफ़ा ने शाम और उसकी इलाकाई सालमियत के लिए फ़लस्तीनियों की हिमायत पर जोर दिया और शाम और उसके अवाम के साथ गहरे ताल्लुकात को सराहा। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके दौरे का मकसद फ़लस्तीनी अथॉरिटी और शाम के दरमियान ताउन को मजबूत बनाना और सियासी और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना है। रूसी नायब सदर मिखाइल बोगदानोव की क़यादत में रूसी वफ़द ने भी दमिश्क में नई इंतज़ामिया के सरबराह अहमद अशरह से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा और इलाकाई मामलात पर बातचीत हुई। रूसी नायब सदर ने सहाफ़ियों को बताया कि रूसी वफ़द की नई इंतज़ामिया के सरबराह अहमद अशरह के अलावा वज़ीर ख़ारजा सद अशिबानी, वज़ीर सेहत माहिर अशरह से भी मुलाकात हुई। बातचीत अच्छे माहौल में हुई। हकीकत यह है कि हम शामी अवाम के साथ दोस्ती और ताउन के ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। मुलाकात में रूसी वफ़द ने तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात में ताउन और बुनियादी ढांचे की तामीर नौ की भी पेशकश की। नाज़रीन, जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा खौफनाक आतिशज़दगी के बाद बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। ये वाक़या बुसान शहर के गिमाई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पेश आया, जब एयर बुसान की परवाज़ BX391 की एयरबस A321 मुसाफिर तैयारे के पिछले हिस्से में अचानक आग भड़क उठी। तैयारा हांगकांग के लिए अपनी तयशुदा परवाज़ की तैयारी कर रहा था। वाक़े के बाद बर वक्त कार्रवाई करते हुए तैयारे पर सवार 176 मुसाफिरों और अमले के तमाम अरकान को कामयाबी के साथ रेस्क्यू कर लिया गया। नाज़रीन, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर मुहासरे और तलाशी की बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ राजौरी, पूंछ, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, रामबन और जम्मू के 23 मकामात पर शुरू की गई हैं। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर श्रीनगर, बडगाम और सोपूर में छापे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। NIA ने आज़ादी पसंद कारकुनों के घरों को निशाना बनाया, लूटमार की और मोबाइल फ़ोन और अहम दस्तावेज़ात को कब्जे में ले लिया। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद से मकबूजा इलाके में जुल्म तशद्दुद के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिससे भारतीय तसल्लुत के तहत जम्मू कश्मीर के तल्ख ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी होती है।
कुछ कौमी खबरें शामिल करेंगे। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया मुजफ्फराबाद के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल और पेंटिंग मुकाबला इख्तिताम पसीर हो गया। फेस्टिवल का मकसद कश्मीरी सकाफत को फ़रोग़ देने के साथ साथ बच्चों में फ़न मुसव्वरी की सलाहियतों को उजागर करना था। फेस्टिवल में कश्मीरी कल्चरल स्टॉल्स, रिवायती खाने, बच्चों के लिए तफरी और पेंटिंग्स के मुकाबले मुनक्किद हुए। तकरीब के मेहमान खुसूसी GOC मरी ने खिताब में नौजवानों पर जोर दिया कि वो सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करते हुए उसे मुल्की मुफाद और तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करने के लिए इस्तेमाल करें। तकरीब में फ़न मुसव्वरी और दीगर शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद में इनामात तकसीम किए गए। शुरका ने फेस्टिवल के इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया और उसे कश्मीरी सकाफत के फ़रोग़ में संगे मील करार दिया। नाज़रीन, वतन से मोहब्बत पाक फौज के जवानों की मीरास है। शोहदा ने अपने खून से आबियारी करके वतन अजीज की बुनियादों को मजबूत किया है। हवालदार शौकत अली शहीद 9 नवंबर 2024 को बलूचिस्तान में शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हुए। हवालदार शौकत अली शहीद ने सोगवारान में वालदैन, भाई और बेवा छोड़े हैं। शहीद के लवाहिकीन ने अपने एहसासात और जज्बात का इज़हार करते हुए कहा कि हवालदार शौकत अली शहीद की कुर्बानी हमारा सरमाया है। मेरा बेटा अच्छा ही बड़ा बचपन का शौक आसू मैनू फौज की नौकरी लगे। आदा फौज की नौकरी लवनी है, मैं फौजी बनना। आदा मैं शहादत लवनी है। फिर आदा मां मेरी शहादत आ जाए तो रोवना नहीं है पिया, दुआ मंगनी है अल्लाह तुम बस। अभी शहादत आ गई। मैं मां मन जींदे तक भूलता तो नहीं है पिया, मामा नू बच्चे नहीं भूलते। फखर है मेरे बेटे की शहादत दा। अल्लाह हर दे बेटियां नू वड्डी जिंदगी करे, दुश्मन दे लड़न दी जज्बा देवे, अल्लाह उन्हें ताकत देवे। जिस तरह मेरा शौकत आई उसी तरह सब मेरे बेटे हैं। बहुत अच्छा ही मैंने जो चीज़ कहंदियां मैंने ला दे अंदर सोहनी अच्छी जिंदगी गुजारी सो मेरे ना बच्चों के नाल बहुत प्यारा करेंदा है। जदों आया छुट्टी ते हर चीज़ उन्हां दी बच्चों दी लाए ते आंदा है। ते बेटा मैं तो पुछदा ना भाई अम्मी अबू कदा आना या किथे है, तो आखना बच्चा तुहाडा अबू जन्नत च। फिर दिल की ख्वाहिश मैं अपने बच्चों को पढ़ाईसा लिखाईसा, अच्छी तालीम देसा, अपने अबू की जगह ते जासन, मुल्क ते रोशन करेसा। दहशत गर्दां नूं कहना चाहनी है असीं तुहाडा खात्मा करते रसां, तुहाडी नस्लां तबाह कर देसां। असीं सबर वाले मजबूत लोग हां। अल्लाह ताला ने उसको शहादत दी है और वो चाहता था मुझे शहादत की मौत आए। जो काम करता था दिल लगा के मेहनत के साथ करता था, फर्मा बरदार था माँ बाप का, बहनों का, वालिदैन की खिदमत करता था। बहुत ज्यादा वालिदों को याद आती है बेटे की। जब से उनकी वर्दी यूनिट से आई है मेरी मम्मा रोती है, उसको देख कर उठाती है, सीने से लगाती है, देखती है, बोसा लेती है। वो कहता था शहीद का बहुत रुतबा बुलंद होता है, ये किस्मत वालों को मिलता है। अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ कबूल की तो उसको अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा अता फरमाया। मुझे और अहले इलाकों को बहुत फख्र है इस चीज़ का। पहली शहादत हुई है और हमारे रिश्तेदारों में भी पहले कोई नहीं शहीद था। ये पहली शहादत है पूरे इलाके को। अल्लाह ताला उसकी ये कुर्बानी कबूल करे। नाज़रीन, 2001 के सैलाब में बह जाने वाला भारा बंद 24 साल बाद भी तामीर न हो सका। भारा बंद जटातर के दर्जनों देहातों में आपाशी का वाहिद जरिया है। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाफरान में आनी अपनी इस रिपोर्ट में। 2001 के सैलाब में बह जाने वाला भारा बंद 24 साल गुजरने के बावजूद अब तक तामीर न हो सका। भारा बंद जटातर के दर्जनों देहातों का आपाशी और अबनोशी का एकलौता जरिया है। इसकी अदब तामीर की वजह से यहाँ से काफी आबादी नकल मकानी कर चुकी है, क्योंकि पानी का वहदी जरिया यही था। बाराबंद की अदम तामीर से हर साल हजारों एकड़ जमीन बंजर रह जाती है, जबकि अबनोशी के लिए मकामी आबादी इस दौरे जदीद में भी कच्चे तालाबों में बारिश का पानी जमा करके पीने पर मजबूर है। मुतअद्दिद दफा इसको बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन सैलाबों की वजह से
ये ताहाल टूटा पड़ा है। पानी की किल्लत और तवील खुशहाली से यहाँ की मकामी आबादी का ज्यादा हिस्सा नकल मकानी कर चुका, जबकि रही सही आबादी सरहद रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से 12 बंद की तामीर की उम्मीद लगाई हुई है। जाफरान मयानी, PTV न्यूज, टांग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जहलुम शहर में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ज़िलाई इंतजामिया तजावुजात के खात्मे के लिए मुतहर्रिक है। रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अख्तर। ज़िला इंतजामिया की तजावुजात के खात्मे की मुहिम भरपूर अंदाज से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जिला भर की चारों तहसीलों में तजावुजात खत्म की जा रही हैं। दुकानों के आगे बड़े हुए पुख्ता थड़े और लोहे के बनाए गए शेड्स का भी खात्मा किया जा रहा है। बहुत अच्छा ऑपरेशन हो रहा है। मैंने अपनी 65 साल ज़िंदगी में इस तरह का ऑपरेशन नहीं देखा और ये बिला इम्तियाज़ हो रहा है और हमारे बाजार जो है काफ़ी खुले हो गए हैं। थोड़ा बेहतर है फैमिली लेकर असी बाजार च आ सकते हैं। अगर तो ना गड्डी गुजारने जगह सी ना बाइक गुजारने जगह सी, हुण तो बड़ी बेहतरी आ गई है। ये बहुत अच्छा कार्य है जी, रास्ते खुल गए और बहुत इंतजामिया बहुत अच्छा किया है। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा डिवीजन में तजावुजात को खत्म करके शहरों को अपनी असली हालत में बहाल कर रहे हैं। पूरे पिंडी डिवीजन में अब ये एक्टिविटी हो रही है और पूरे पंजाब में हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन है, सबको एतमाद में लेके जिस तरह एक अच्छे माहौल में ये ऑपरेशन चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। चारों तहसीलों में एंटी इंक्रोचमेंट विंग कायम किए गए हैं, जिनकी निगरानी मुतल्लिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स कर रहे हैं। शहरियों की शिकायत पर मरकजी बाजारों और शहरों से तजावुजात को मस्मार किया जा रहा है। तजावुजात के खात्मे से जहां ट्रैफिक की रवानगी में बेहतरी आई है, वहीं शहर की सड़कें और बाजारों की रौनकें भी बहाल हुई हैं। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज, जेहलम। पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत साहिवाल में 47 जोड़ों की शादी की तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नौबेहाता जोड़ों को 1 लाख रुपए नकद और 2 लाख रुपए का जहेज भी दिया गया है। तफसील बता रहे हैं खाविर अली चौधरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत साहिवाल में 47 जोड़ों की शादियों का एहतमाम किया गया। शादीशुदा जोड़ों को पंजाब की हुकूमत की तरफ से 1-1 लाख रुपए की सलामी और 2 लाख रुपए से जायद मालियत का जहेज भी दिया गया। बहुत ही मशकूर है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कि उन्होंने हमें धी रानी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बहुत बहुत मशकूर है हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद करवाया है। शादी की तकरीब में शरीक होने वालों को जोहराना भी दिया गया। नौबेहाता जोड़ों को दिए जाने वाले जहेज के सामान में डबल बेड, मैट्रेस, डिनर सेट, बर्तन और दूसरा घरेलू सामान शामिल है। नौबेहाता जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी और तोहफे दिए गए। वजीर आला का पंजाब धी रानी प्रोग्राम गरीब खानदानों की बेटियों के लिए एक तारीखी कदम है। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, साहिवाल। और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर किसान पैकेज के तहत पंजाब में 9 अरब रुपए की लागत से 8000 बिजली और डीजल इंजन पर चलने वाले ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिली शुरू हो गई है। तफसील मोहम्मद अशरफ से। फसलों को सैराब करने के लिए नहरी पानी और ट्यूबवेल से आपाशी की जाती है। जिला उकाड़ा में फसलों को सैराब करने के लिए 46,950 ट्यूबवेल लगाए गए हैं, जिनमें से 13,615 बिजली, 32,650 डीजल इंजन और 650 शमसी तवानाई पर चलने वाले ट्यूबवेल हैं। वज़ीर आला पंजाब के किसान पैकेज के तहत 10 किलोवाट पर 5 लाख रुपए, 15 किलोवाट पर 7.5 लाख रुपए और 20 किलोवाट पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। ना सिर्फ यकसा पानी मिलेगा फसलों को और बल्कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी, तो यकीनी तौर पर किसान खुशहाल होगा। वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें सोलर सिस्टम दे रही है। सोलर सिस्टम से हमारी पैदावार भी बढ़ेगी और आमदनी में इजाफा होगा। असी फसलों को सोहनी तरह पानी लाइए, असी भी खुशहाल, मुल्क भी खुशहाल। ज़रूरी ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन के तहत उकाड़ा में 30 अक्टूबर 2024 से पहले बिजली और डीजल इंजन पर चलने वाले 346 ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली से काश्तकारों को महंगी बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी और ज़रूरी पैदावार में भी इजाफा होगा, जैसे किसान खुशहाल होंगे। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, उकाड़ा। RDA इन्फोर्समेंट स्क्वाड की गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान RDA के मुताबिक अडियाला रोड रावलपिंडी पर ट्रैफिक की रवानी को बढ़ाने और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक अहम कार्रवाई की गई। इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने अडियाला रोड पर गैर मिजाज तजावुजात का सफाया करवा दिया। इकदाम का मकसद भीड़ को कम करना और मुसाफरों के लिए ड्राइविंग के मजमूई तजुर्बे को बेहतर बनाना है। तर्जुमान RDA के मुताबिक ऑपरेशन शहर के बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए किया गया है।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़ेरे इंतज़ाम अटक में पहली बार 3 रोज़ा टेक्निकल एजुकेशन की इफादियत पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालिबात के साथ साथ तामीराती, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल शोबे से वाबस्ता अफराद और आवाम ने भी शिरकत की। सेमिनार का मकसद बच्चों में टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत और इसके रुझान को बढ़ाना था। तलबा तालिबात ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सोलर प्रोजेक्ट, एमरजेंसी एम्बुलेंस क्रॉसिंग सिस्टम, विंड टर्बाइन सिस्टम पर शानदार प्रोजेक्ट के नमूने भी पेश किए। नाज़रीन, मानसहरा के नवाही इलाके बिदादी में हज़ारा यूनिवर्सिटी के शोबे आर्कियोलॉजी के माहिरीन ने 2800 साल कदीम 5 नस्लों के आसार दरियाफ्त कर लिए हैं। डॉक्टर शाकिरुल्लाह की ज़ेरे निगरानी खुदाई में इस मुकाम पर 5 नस्लों की सकाफती और तारीखी तरक्की के आसार मिले, जो आंडो यूनानी दौर से लेकर बरतानवी नौआबादियाती दौर तक फैली हुई हैं। यहाँ से मिलने वाले नवादरात में तांबे के सिक्के, मिट्टी के मुजस्समे, मोती और लोहे के औजार शामिल हैं। ब्रिटिश काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के माल इश्तराक से चलने वाले मनसूबे का मकसद नवादरात को महफूज रखने और सकाफती वर्से को मुस्तकबिल की नस्लों के लिए महफूज रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करना है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ज़िला ग़िज़र के बालाई इलाकों में अब तक तकरीबन 1 फुट, जबकि ज़िली हेडक्वार्टर गहकोच बाला में 3 इंच बर्फ पड़ चुकी है। ज़िला के बालाई इलाकों टेरो, हंदरब, दरकोद और मतरमदान का ज़मीनी राबता ज़िली हेडक्वार्टर गहकोच बाला से मुनक़ते हो गया है। बर्फबारी के बाइस लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ते पोटोहार में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -10, गोपिस -7, लह -6, अस्तौर -5, हुंजा, गिलगित और बगरोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।